السلام علیکم، میں ہوں ایسٹرولوجر بلال شفیع۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا جب مرکری کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے ایریز سے لے کے پائسز والوں کے لیے کیسے جانے کے امکانات ہیں۔ اچھا، میں اس سے پہلے ابتدا میں جو میں باتیں کرتا ہوں تو میں شروع کروں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا چاند گرہن، سورج گرہن، قمر در عقرب، یہ مطلب بہت ایسے اکثر آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لوگوں سے بھی سنا ہوگا۔ مہادشا کیا ہوتی ہے، انتردشا کیا ہوتی ہے، پریانتر دشا کیا ہوتی ہے، لگن چارٹ کیا ہوتا ہے، مون چارٹ کیا ہوتا ہے، یا لگن راشی کیا ہوتی ہے، چندر راشی کیا ہوتی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں ان ساری چیزوں میں۔ پہلے دیکھیں، سب سے پہلے جو چاند گرہن ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے اپنے پرسنل برتھ چارٹ میں اگر آپ کا مون بہت اچھی پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے، گرو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا گج کیسری یوگ بنا ہوا ہے، تو یہ چاند گرہن جب آپ کے اوپر لگے گا تو ایک نئی انرجی کے ساتھ ابتدا کرتا ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا، ایک سائیکل ختم ہو کے دوبارہ سے ابتدا میں اچھائی کی طرف جانا۔ اگر کسی کے زائچے میں راہو میں مون کی دشا چل رہی ہو یا راہو اور مون ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ چاند گرہن جو ہے، جو 25 کو ہوا ہے، میں اس حساب سے بتا رہا ہوں تو یہ تھوڑا سا ذرا کمزور پوزیشن آتی ہے۔ خیر، خاص طور پہ میں بتاؤں پوری دنیا کے حساب سے اگر میں بتاؤں تو شارٹ اس میں پانی کا جو ہے سمندر، چاند جیسے چڑھتا ہے اترتا ہے، اب تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو ایسے سمندر کی کیفیت بڑھتی اور کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا برین، دماغ پر بھی اس کا پورا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مون کے زیر اثر چل رہی ہوتی ہے۔ جس کا مون جہاں پر بیٹھا ہوگا زائچے میں، اس حساب سے اس کے اندر آپ کو ایک انرجی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر مون ایریز میں بیٹھا ہو تو ایسا انسان بہت زیادہ تیزی میں رہتا ہے۔ اگر کسی کا مون کینسر میں بیٹھا ہو تو ایسا انسان بہت سمجھدار ہوتا ہے۔ الگ الگ حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا پرسنل برتھ چارٹ میں مون کدھر بیٹھا ہوا ہے اس حساب سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر دشا کس کی چل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، اس حساب سے آپ کو صدقہ دینا چاہیے، اس حساب سے آپ کو اس کی ریمیڈی کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آل اوور ایک نئے سرے سے ایک ابتدا کی طرف لے کے جانا، یا پورے اس کو دنیاوی حساب سے کہوں تو ایک اسٹیپ ختم ہو کے دوبارہ کی طرف، مطلب ایک بوسٹنگ کی طرف لے کے جاتا ہے یہ ٹائم جو شروع ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ذرا کمزور پوزیشن مانی جاتی ہے۔ مگر خیر، آپ کے اوپر دشا کس کی چل رہی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لگن چارٹ کیا ہے۔ آپ کا لگن چارٹ ہوتا ہے آپ کا پیدائش کا زائچہ، کہ آپ کے پلانٹری پوزیشن کدھر بیٹھے میں، آپ کا سیٹرن کدھر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا جوپیٹر کدھر بیٹھا ہوا ہے، راہو کیتو کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی وینس کدھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ساری جگہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے زائچے میں فیور کے پلانٹ کی مہادشا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر جیسے آپ کا ایریز لگن ہے، آپ کے اوپر اچھی، آپ کے فیور کے پلانٹ جوپیٹر کی مہادشا چل رہی ہے، یا مارس کی مہادشا چل رہی ہے، یا مون کی مہادشا چل رہی ہے، تو بہت زبردست جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس پلانٹ کے جو ٹرانزٹ کے اندر اس پلانٹ کی پوزیشن کیا چل رہی ہے۔ مطلب اگر آپ کی جیسے جوپیٹر، آپ کی مہادشا اگر آپ کی جوپیٹر کی چل رہی ہے تو جوپیٹر آپ کے پیدائش کے زائچے میں کدھر بیٹھا ہوا ہے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی جوپیٹر پیدائش کے زائچے میں 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا اور اس کی مہادشا شروع ہو گئی، تو یہ اگر ایج کے حساب سے ہوتا ہے، اگر مہادشا شروع ہو گئی تو شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات میں بہتری آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ کے زائچے میں 10ویں گھر کی مہادشا شروع ہو گئی ہے، 10ویں گھر کا مالک اگر سیٹرن ہو، راہو ہو، سیٹرن ہو، وینس ہو، اور اس کی مہادشا شروع ہو گئی، تو پروفیشنل معاملات میں آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں، چینجنگ یا بہتری آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تیسرے اور چھٹے گھر کی اگر آپ کی مہادشا شروع ہو گئی آپ کے پیدائش کے لگن چارٹ کے زائچے کے حساب سے، تو محنت بڑھ جاتی ہے، آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم دیکھنے کو ملتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز میں آپ کے جیسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مخالفت آپ کی بڑھ جاتی ہے، قرضے آپ کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دشاؤں کا بہت اہم کردار ہے۔ پھر اب یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ آل اوور بات ہے، مطلب یہ جو پریڈکشن ہوتی ہے کہ جو مرکری کا ٹرانزٹ موو ہو رہا ہے یا وینس کا ٹرانزٹ موو ہو رہا ہے، جس پہ میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، تو یہ ایک آل اوور ہے۔ اور اس کو اگر میں کہوں اگر آپ کی دشا چل رہی تو ظاہری بات ہے یہ 80% ہوگا۔ ویسے تو خیر پورا زائچہ دیکھ کے بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر دشا نہیں چل رہی ہے تو اس کو صرف میں خود کہوں گا اس کو 40% آپ رکھیں۔ تو میں خیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانزٹ موو ہو رہا ہے مرکری کا، مرکری اپنے کمزور پوزیشن سے نکل کر کچھ گھنٹوں کے بعد یہ ایریز میں آ رہا ہے۔ خیر ایریز میں بھی اتنا اچھا نہیں مانا جاتا مگر یہ اس ٹائم بہت کمزور پوزیشن میں چل رہا ہے، اور جو پچھلے دنوں چلا ہے۔
तो मरकरी का जो ट्रांजिट मूव होना है, तो सबसे पहले मरकरी है क्या? मरकरी है हमारे दिमाग में जो सोचने समझने की हमारी सलाहियत है। मरकरी जिनका पैदाइश के जायचे में अच्छा बैठा होता है, तो ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा समझदार इस मामले में भी होता है कि किसी को देख के वो समझ जाता है। ऐसा इंसान की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। ऐसे इंसान को होता है कि बिजनेस के मामलात में जिसे कहते हैं कि वो बहुत अच्छा लेके चलता है। ऐसा इंसान अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाना जानता है, जिसका मरकरी बहुत अच्छा बैठा हुआ हो। तो आप लोगों के जायचे में एरीज से लेके पाइसेस वालों को मैं बताऊंगा कि अगर आपके जायचे में जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हुआ है तो ये कैसे जाने के इम्कान है। सबसे पहले मैं एरीज वालों को बताता हूँ कि जो ट्रांजिट मूव हो रहा है, सारी बातें मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके कुछ घंटों के बाद उसका ट्रांजिट मूव हो जाएगा। तो खैर ये मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, मरकरी आपका तीसरे छठे घर का मालिक है और ये लगन पर आपके आ जाएगा, ठीक है। खर्चों में या कर्जे की तरफ आपका थोड़ा ध्यान जा सकता है, या कर्ज की तरफ आपका जैसे कहते हैं ना कि कर्ज लेन या देन, इस टाइप का आपका ध्यान जा सकता है। कोई छोटा ट्रैवल आपका हो सकता है, घूमने फिरने का प्लान आपका बन सकता है। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की जरूरत है, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है और ये लगन पर आ रहा है। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा पेट का ख्याल रखना, या थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एक सर में भारीपन रहना, कंधों में भारीपन रहना, इस टाइप की चीज आपको देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा खर्चे बढ़ा देता है। और तीसरे और छठे घर का मालिक जब ये लगन पर आता है, मतलब जाहिर बात है जो प्लेनेट जिस जगह का है उसकी जगह का लगन पे जब आता है तो उसी से रिलेटेड सोचें जरा ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं, छोटे कजन हैं, उनकी थोड़ा सा आपको हेल्थ का ख्याल रख के चलने की जरूरत है। थोड़ा सा हेल्थ में कुछ माइनर सी खराबी देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, टॉरस वालों का आपका कारक प्लैनेट है, आपके फेवर का प्लैनेट है मरकरी, और आपके ये दूसरे और पांचवें घर का मालिक है, और ये आपके 12वें घर में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके पैसों के मामला में आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने के इम्कान आते हैं, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके जैसे होता है ना कि थोड़ा सा हेल्थ का आपको ख्याल रख के चलने की जरूरत है। थोड़ा तालीमी मामला पे उनके फोकस करके चलने की जरूरत है। कुछ खैर जुपिटर के साथ ये ज्वाइन होगा तो कुछ हद तक ये नेगेटिविटी दिखाता है, उसके बाद ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट, एक अच्छा प्लैनेट है। इसके साथ मरकरी का ज्वाइन होने एक अच्छी बात है। मगर खैर 12वें घर में जा रहा है तो खर्चे बढ़ जाएंगे। कुछ आपको ऐसे मामला, कानूनी मामला हो या किसी के साथ मसले मसाइल, अगर कुछ आपके इख्तलाफात चल रहे हैं तो किसी में उलझने की जरूरत नहीं है, वरना थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम दिखा सकता है। तालीमी मामला पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। जो लोग जैसे होता है ना कि अगर अपनी जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे जॉब के लिए या तालीमी मामला के लिए या कोई भी ऐसे काम के लिए गए हैं तो इसमें कुछ तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामला में आपको कुछ जैसे कहते हैं कि इसमें भी थोड़ी सी तरह चेंजिंग की तरफ लेके जाता है। अगर आपकी किसी के साथ मोहब्बत है या कुछ मोहब्बत के मामला है, इसमें थोड़ी हाई वाइब्रेशन की तरफ तो जाता है, मगर ऐसा इंसान होता है ना कि एक को छोड़ के तरफ दूसरे की तरफ ध्यान जाना, इस टाइप की चीज लेकर ये जाता है। तो ऐसी एक्टिविटीज को दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 12वां घर है इसी चीज़ का कि थोड़ा सा ज़रा दिखता कुछ और दिखाता कुछ है। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखें, आपका लगन का और आपके चौथे घर का मालिक मरकरी है, ठीक है। ये आ रहा है आपके 11वें घर में। जेमिनी वालों को मैं कहूँगा आपके पिछले कुछ दिन जो ये मरकरी रहा है आपके, कि आपके हेल्थ के मामलात के लिए, आपके खर्चों के मामलात के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि क्योंकि आपका लगन का मालिक है, लगनेश आप खुद हैं ये, तो इसका कमज़ोर होने का मकसद है कि आप खुद कमज़ोर हैं। तो अब ये जो इसका ट्रांजिट मूव हो रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन जाने के इम्कान है। गुरु के साथ इसका 11वां घर होगा और आपके चौथे और लगन का मालिक है। कुछ गाड़ी से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ घरेलू मामला में आपके कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं या घरेलू मामला में कुछ आपकी परेशानियां चल रही हैं, वालदा की हेल्थ को लेकर अगर कुछ परेशानियां चल रही थी, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाने के इम्कान है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आपको आता हुआ नजर आएगा। वजन आपका थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु के साथ जब भी कोई लगन का मालिक आता है तो थोड़ा वजन को बढ़ाते, तो आप अपने वजन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और एक हेल्थ से रिलेटेड कहूँ तो कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा ज़रा ये बढ़ाता है, तो आपको अपने खाने पीने में भी थोड़ा सा ज़रा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। कोई अगर आपकी दिली ख्वाहिश है बड़ी तो ये पूरी होने के इम्कान है। कहीं आपका पैसा अटका हुआ है तो वो मिलने के इम्कान हैं।
कोई दिमाग पे आपके काफ़ी अरसे से कोई वज़न चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई उलझन चल रही है, तो इस ट्रांजिट के मूव होने के बाद ये सॉल्व होने के इम्कानात हैं। अपना पर्सनल जायचा देख कर या दिखवा कर आपको, सॉरी मैं कहूँगा दिखवा कर, ये आपको एमरल्ड स्टोन वेयर करना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश का ट्रांजिट मूव हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का जो ये मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए आपके 12वें और तीसरे घर का मालिक मरकरी है, ठीक है, ये आप लोगों का बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, मगर खैर कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, ये आपके तकदीर के घर में चल रहा है। तो ये जाहिर बात है कुछ घंटों के बाद इसकी मूवमेंट हो रही है, जो मैंने शुरू में कहा ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो ये आपके 10वें घर में आ रहा है। कुछ प्रोफेशनल मामलात में आपकी तब्दीली आने के इम्कानात हैं। कुछ आपके जैसे होता है ना कि आप कोई नया काम करना चाह रहे हो, या कुछ आप अपने काम की तरफ से अगर कोई परेशानी चल रही तो वो सॉल्व होने के इम्कानात हैं। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, या आपका कोई जैसे होता है कि अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं, या कोई बड़ा सफ़र करना चाह रहे हैं, तो इसके मामलात में कुछ बड़ी पॉजिटिव हलचल होने के भी इम्कानात हैं। मतलब कुछ एक अच्छा आपको डायरेक्शन मिलने के भी इम्कानात है। कोई हो सकता है जैसे कोई आपके छोटे बहन भाई हों, छोटे आपके कज़न हों, उनसे रिलेटेड कोई खुशी के मामलात में आपको, या उनके प्रोफेशनल मामलात में, उनके एजुकेशन के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। खर्चे आपके कुछ हद तक कंट्रोल होंगे। कोई हो सकता है आपका रुका हुआ पैसा भी आपको आपका अटका हुआ पैसा वो भी मिलने के इम्कानात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए आपके दूसरे घर और आपके 11वें घर का मालिक मरकरी है, और इस टाइम 8वें घर में चल रहा है, 9वें घर में आएगा। तो खैर आपका कारक प्लैनेट है लियो वालों का, आपका फेवर का प्लैनेट है मरकरी, उसको लॉर्डशिप जो मिली हुई है 11वें और दूसरे घर की मिली हुई है। पैसों से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी चल रही थी तो इस ट्रांजिट के बाद आपको पैसों से रिलेटेड कुछ बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। आपके बड़े बहन भाई, बड़े कज़न, या आपसे जो बड़ी उम्र के दोस्त हैं, उनके साथ अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो आप उनको बेहतरी में आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ से रिलेटेड आपका होता है ना, जैसे मरकरी को मैं कहूँगा जैसे आपकी सोचने समझने की सलाहियत अगर एक जगह पर रुकी हुई थी, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या कोई एक जगह पे आप आके रुके हुए थे, तो इस ट्रांजिट के मूव होने के बाद उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। वालिद के साथ आपके अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, इज्जत में आपके इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वजन आपका थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है, इसका आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मगर कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई परेशानी जो आपको लंबे अरसे से चल रही थी तो वो सॉल्व होने के इम्कानात हैं इस मरकरी के ट्रांजिट मूव होने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कानात हैं। देखिए विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपका लगन का मालिक है, लगन का मालिक है, जेमिनी का भी है और विर्गो का भी है, और लग्नेश का ट्रांजिट मूव होना ये बहुत अहम होता है, ठीक है। अभी विर्गो वालों को मैं कहूँगा कमज़ोर पोजीशन में बहुत ज़्यादा ये रहे, क्योंकि लग्नेश इनका बहुत कमज़ोर पोजीशन में रहा है, ठीक है। अब इनका जो लगन का मालिक है वो लग्नेश जो है वो 7वें घर में आ रहा है, सॉरी 8वें घर में आ रहा है। तो 8वें घर में लगन के मालिक का आना ये कैसा माना जाता है। देखें अक्सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लग्नेश का 8वें घर में आना या 6ठे घर में आना या 12वें घर में आना अच्छा नहीं माना जाता है, मगर मैं आपको कहूँगा लग्नेश लगन का मालिक जहाँ पर भी ट्रांजिट मूव करता है वो बेहतर ही रिजल्ट देता है, वो नुकसान गलत रिजल्ट नहीं देता। आप लोगों का 8th हाउस में ये ट्रांजिट मूव करके आ रहा है। आप लोगों को हो सकता है कहीं से आपको कोई बड़ा फायदा होने के इम्कान हैं, कहीं आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई जायदाद से रिलेटेड, या कोई जैसे होता है ना कोई किसी मामले में कोई आपके ज़मीन और जायदाद से रिलेटेड कोई कानूनी मामलात में उलझन चल रही थी, या कोई परेशानी चल रही थी, या कहीं आपका पैसा अटका हुआ था तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। कोई बड़ी आपका अगर आपका कोई बड़ा काम रुका हुआ है तो वो होने के इम्कान हैं। आपका जैसे होता है कि आपकी शादी अगर हुई है, आपके ससुराल वालों के साथ कोई परेशानी चल रही है, ससुराल वालों की हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है तो वो बेहतर होने के इम्कान हैं। आपकी अच्छी जगह पे इस टाइम अगर आपको कोई रिश्ता होता है तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त जाने के इम्कान हैं। इस टाइप की चीज़ ये यानी कि ये वो फेस होता है कि आपको एक नई ट्रैक की तरफ लेकर जाता है। और हो सकता है जैसे क्योंकि आपके ये 10वें घर का भी मालिक है, तो कुछ प्रोफेशनल मामलात में भी जैसे कहते हैं ना कोई बड़ी तब्दीली कह लें, या आपको कोई अच्छी सपोर्ट कह लें, इस टाइप की भी चीज़ मिलने के इम्कान है। तो कोई नई जॉब कह लें या नया बिजनेस कह लें, या कुछ नया डायरेक्शन चेंज करने की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि ये जुपिटर के साथ ज्वाइन हो रहा है 8th हाउस में। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए आपके 9वें घर का और 12वें घर का मालिक मरकरी है, ठीक है।
आपके तकदीर के घर का मालिक है, बहुत अहम है। तकदीर के घर का मालिक मरकरी और आपके 12वें घर का मालिक भी मरकरी है। इस टाइम ये बहुत कमजोर पोजीशन में चल रहा है, ठीक है। अब ये आ रहा है आपके 7वें घर में। तो 7वें घर में जो मरकरी का आना, आपको सबसे पहले आपकी तकदीर की आपको सपोर्ट मिलती भी नजर आएगी। आपके खर्चे जो बढ़े हुए चल रहे थे, इसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। कहीं से आपको कोई बड़ा पैसा आपके हाथ में आ सकता है, कहीं से आपको कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। आपके तालीमी मामलात में आपका बहुत ज़बरदस्त फोकस रहेगा। आपकी जिसे कहते हैं ना कि दिमाग का सही चलना, सही डायरेक्शन पे चलना, सही डिसीजन लेना, या कोई अपने दिमाग के जरिए आप कोई बड़ा काम करना, इस टाइप की चीज़ करवाता है मरकरी। जब 7वें घर में जुपिटर के साथ आता है, थोड़ी सी ज़रा तेज़ी आपके अंदर रहेगी। मतलब नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ज़रा, जब ये 7वें घर में आता है थोड़ा तेज़ काम करना शुरू हो जाता है, तो आपके अंदर थोड़ी तेज़ी आएगी जो इस ट्रांजिट मूव होने के बाद। और जैसे होता है ना कि कोई बुरी चीज़ होना या कोई बुरी चीज़ होने से पहले इंडिकेट हो जाना, कोई ख्वाब के जरिए आपको इशारे मिलना, इस टाइप की चीज़ें लिब्रा वालों को ये चीज़ इनके साथ है कि इनको ऐसी चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि समझ में आ जाती है और उनको पता चल जाता है। और ये जब मरकरी का ट्रांजिट मूव होगा तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपके 8वें और 11वें घर का मालिक मरकरी है, ठीक है। अब ये आपके 6ठे घर में आ रहा है, कमज़ोर पोजीशन से निकल के। ये खैर वैसे तो खैर ये भी मार्स के घर में आ रहे हैं, मगर इससे बेहतर होगा आपका। तो आपके 11वें घर का मालिक और आपके 8वें घर का मालिक 6ठे घर में आना है। तो आपका हो सकता है कहीं से आपको कोई, आपने अगर कर्ज के लिए कोई अप्लाई किया हो या आपने कहीं पैसों से रिलेटेड किसी को काम कहा हो तो वो होने के इम्कान है। कर्ज आपको मिलने के इम्कान हैं। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके बड़े बहन भाई हैं, बड़े कज़न हैं, या आपकी उम्र के जो बड़े दोस्त या रिश्तेदार हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। या उनसे रिलेटेड अगर आप अपना कोई काम करवाएंगे तो आपको जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और ये भी होता है कि जब मरकरी मतलब 6th हाउस में आता है तो एक चीज़ का थोड़ा सा ज़रा मतलब मैं कहूँगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ा सा ज़रा ये स्विंग करवाता है। मतलब होता है ना कि करते करते ध्यान कहीं और की तरफ भी जाता है, यार मैं ये काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाऊँ, या थोड़ा ट्रैक चेंज करने की तरफ आता है। प्रोफेशनली तौर पर थोड़ा सा आपको ज़रा इस चीज़ को बैलेंस करके चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ सेजिटेरियस वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपका ये आपके 7वें घर और आपके 10वें घर, आपके 7वें और 10वें घर का मालिक मरकरी जो है ये अब आपके आ रहा है 5वें घर में, ठीक है। आपके अगर शादी नहीं हुई भी तो आपका शादी होने के इम्कान है। कोई अगर आप रिश्ते की वजह से कोई परेशान चल रहे तो रिश्ता होने के इम्कान है। कोई जॉब की वजह से आपको परेशानी चल रही थी तो वो होने के इम्कान है। जॉब से रिलेटेड आपको पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था या आपके ऊपर कोई परेशानी चल रही थी तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। बच्चों से रिलेटेड अगर आपके हैं तो उसमें आपका फोकस बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। आपकी मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी। आपका एक चीज़ मैं आपको खास बताऊं, जैसे होता है ना कि पार्टनरशिप के मामलात में आपके खर्चे थोड़े से ज़रा बढ़ सकते हैं, या मतलब होता है ना कि घर पे कुछ खर्चा बढ़ना या घर के अपने फैमिली पे थोड़ा खर्चा बढ़ना, इस टाइप की चीज़ ये बढ़ा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैप्रिकॉर्न वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। आपका 9वां घर और आपके 6ठे घर का मालिक मरकरी है, ठीक है। ये आपका 9वां घर मतलब तकदीर के घर का मालिक और आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी जॉब का रिलेटेड, आपका कर्जों से रिलेटेड, यानी कि इन बड़ी जो लॉर्डशिप इसको मिली हुई है इससे रिलेटेड इसका लॉर्ड जो है इस टाइम कमजोर पोजीशन में रहा है। अब ये आपके 4थे घर में आ रहा है। तकदीर की आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। बड़ा सफ़र करना चाहते हैं तो वो होने के इम्कान है। आपके वालिद की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके वालिद के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। या होता है ना कि आपका कोई आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। कहीं से आपको कोई अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, प्रोफेशनली तौर पर भी मैं कहूँगा और घरेलू तौर पर भी मैं कहूँगा। मतलब आपके घर के हिसाब से भी आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। इज्जत में आपके इजाफा होगा क्योंकि आपका कारक प्लैनेट मरकरी है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको खास कहूँगा कि जैसे होता है ना कि आपका घूमने फिरने का, या थोड़ा सा ज़रा इसको मैं इस तरीके से कहूँगा कि जब मरकरी 4th हाउस में आता है तो हार्ट का भी घर है 4th हाउस, तो थोड़ा सा ज़रा
तेजी ले आता है, चंचल कर देता है, मतलब एक जगह टिकने नहीं देता। थोड़ी सी तरह भाग दौड़ आपकी थोड़ी बढ़ सकती है कामों को लेके, चाहे वो प्रोफेशनली तौर पर हो, चाहे वो घर के कुछ मामलात हो, घर के कुछ कामों के अंदर जिसे कहते हैं कि कुछ तेजी लेकर आ जाता है आपके। और वालदा की हेल्थ में भी आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी इस ट्रांजिट के मूव होने के बाद। अब मैं आपको बताता हूं ये जो एक्यूरियस वालों का मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। आपके ये 8वें घर और आपके 5वें घर का मालिक मरकरी जो है ये तीसरे घर में आ रहा है। सबसे पहले ये मैं कहूँगा, अगर कुछ मोहब्बत के मामलात में आपकी खराबी चल रही थी, चाहे वो प्रोफेशनली तौर पर हो, रिलेशन के तौर पर हो, कहीं की भी, मतलब आपको कहीं ऐसा लग रहा था कहीं आप इग्नोर हो रहे थे, तो अब इसमें आपको दोबारा से जिसे कहते हैं कि आपको एनर्जी देखने को मिलेगी, दोबारा से आपकी इज्जत में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके जैसे होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ख़राब चल रही थी, चाहे वो रिलेशन के तौर पर हो या प्रोफेशनल रिलेशन के तौर पर हो या कोई भी मामलात में हो, ये अब सॉल्व होने की तरफ जाने के इम्कान है। आपके कोई भी काम रुके में उनमें तेज़ी आने के इम्कान हैं अब जो शुरू हो रहे हैं आपके। और जैसे देखें आपके 5वें घर का भी मालिक है ये, तो मोहब्बत के मामलात में तो तेज़ी रहेगी आपकी। जैसे होता ना कि कोई अगर आपको बड़ा काम करवाना है तो या करना है तो इस फेज में आपके ये भी होने के इम्कान है। अगर आपके कोई बड़े कज़न या आपके जो उम्र से जो बड़े हैं कि जो लोग अगर बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज चल रहे हैं, तो ये जो 8वें घर का भी इसको लॉर्डशिप मिली हुई है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ से रिलेटेड बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाइसेस वालों का जो मरकरी का ट्रांजिट मूव हो रहा है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपके 4थे घर का और आपके 7वें घर का मालिक मरकरी जो है वो अब आ रहा है आपके दूसरे घर में, ठीक है। तो पाइसेस वालों को मैं कहूँगा जैसे उनकी ऐसा लग रहा होगा कि पिछले कुछ अरसे से दिमाग उनका जरा बंद सा या सुन सा चल रहा होगा, या कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा होगा, या मूड कुछ अपसेट सा चल रहा होगा। तो अब इसका ट्रांजिट मूव होकर दूसरे घर में आ रहा है, तो अब आपके मामलात में, आपके खास तौर पे फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। गाड़ी में, घर पे आपका कोई खर्चा बढ़ सकता है क्योंकि आपके 4थे घर का भी मालिक है ये। आपके पार्टनरशिप के जो लॉर्डशिप है इसको मरकरी को दी हुई, आपके 7वें घर का भी मालिक है, तो आपके कोई अगर आपकी शादी हुई तो आपके पार्टनर पे खर्चा बढ़ सकता है, या आपको पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं, या आप अपने घर से रिलेटेड जो है आपके घर में कोई काम निकल सकता है, जो आपके काम काफ़ी लंबे अरसे से रुके हुए थे, तो घर पे आपका खर्चा बढ़ सकता है। मगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। पैसों से रिलेटेड क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये आपके जो इस टाइम चल रहा है कमज़ोर पोजीशन में, या मगर अब ये 2nd हाउस में आ रहा है, तो फिलहाल इससे ज़रा बेहतर होगा। कहीं से आपको पैसों से रिलेटेड अच्छा आपका फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आने के इम्कान हैं। और मैं आपको कहूँगा कि जैसे होता है ना कि अगर आप कोई नई डील करना चाह रहे हैं, या कोई नया काम करना चाह रहे हैं, या कोई नया आप स्टेप उठाना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के ये जो ट्रांजिट मूव होने के बाद इसको आप समझ लें कि अप्लाई होने का टाइम शुरू हो रहा है। तो अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने के इम्कान हैं। बाकी मैं कहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।